Hi, good evening, friends. Welcome back to my channel Triple A Easy Trading and Investing with Manthapa. So today we are going to discuss about a new company called JK Paper. So JK Paper pipeline of packaging, boarding, and copier papers hit a record volume of 2.06 lakh tons. Could this be your next long-term wealth creator? Let's discuss. India's top paper maker JK Paper stock dipped after a 72% profit drop in Q4 financial year 2025, but new import duties could turn it around. In next 15 minutes, I will show you why this stock could be a gem starting with this order book. Let's deep dive into how JK Paper makes money. Founded in 1960, JK Paper is India's largest paper and packaging board makers, producing everything from office papers to eco-friendly packaging. Paper and board contribute 80% of revenue, includes copy paper, coated paper, and packaging board for food and retails. Corrugated packing contribute 20% of the sales. Boxes for e-commerce and industrial use boosted by acquisitions. They operate three plants in Odisha, Gujarat, and Telangana with a capacity of 7.6 lakh tons per year, a measure of product volumes. Their focus is sustainable plastic free packaging. Now you know what they do. Let's check their business pipeline. JK Paper order book is in production capacity and new contracts. In Q1 financial year 2026, they achieved 2.06 lakh tons in sales volume, up 5% year on year, with new contracts for packaging boards to e-commerce giants. This pipeline drives revenue, but slower demand could limit the sales. Why JK Paper is growing? Let's look at the industry as well. The rupees 83,000 crores paper and packaging market grew 6 to 7% annually, and JK Paper is one of the leading player in it. Driven by e-commerce, food packaging and education demand, a new minimum import price of rupees 67,500 per ton for multi-player paperboard until March 2026 protect domestic players like JK Paper from cheap imports. Their 7.6 lakh TPA capacity and sustainable product gives them a strong positions. What's JK Paper growth plan? Let's discuss into that. JK Paper investing in packaging expansions targeting rupees 2000 crores by financial year 2026. Added 3.2 lakh TPA by acquisition like Radhesham Wellpack and Quadrant Wenthal. Q1 financial year 2026 revenue were flat at 1479.4 crores but volume up by 5% to 2.06 lakh tons. Rupees 5 rupees per share dividend is also provided at financial year 2025 yielding 1.4%. In sustainability, trees planted across 55,700 acres benefiting to 84,000 farmers. Track record of financial year 2024 revenue is at 6,660 crores. Financial year Q4 2025 PAT fell 72% to 76.2 crores due to high wood cost. This is the major concern here. Growth looks solid, but what are the risks? Let's discuss. In Q4 financial year 2025, the PAT crashed 72% to 76.2 crores with EBITDA margin down to 12.8% from 20.9% due to high wood cost. Import pressure persists despite duties. Cheap import from the Indonesia could continue post March 2026. Stock down 26.92% in past 1 year, trading at 350 rupees in 2025 recently August. High cost and season demand risk in festival and education heavy business. Now let's look at the number. So JK Paper has a market capitalization of 5,907 crores, whereas the enterprise value is 7,750 crores. He has a debt of 0.37. Current price is 349 rupees, whereas the book value is 319 rupees. It means it is very close with its current price and book value. ROCE is 8.63 and ROE is 7.04. ये बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत बेहतरीन नहीं है, लेकिन but it is still good. इंडस्ट्री पीई इज 16.1 और स्टॉक का पीई 16.8 है, तो इंडस्ट्री पीई से थोड़ा से प्रीमियम में ये ट्रीट कर रहा है. ऑल टाइम हाई से जो है द गुड पार्ट इज इट इज 45.4% डाउन फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई. पैट्रिस्टिक स्कोर जो है वो काफी अच्छा है. आउट ऑफ 9 इट इज 6.
CFO बाय पैट जो है ये काफ़ी अच्छा बना रहे हैं, जितना ये प्रॉफिट अपना दिखाते हैं उतना ही जो है ये उसको कैश में भी कन्वर्ट कर पा रहे हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.09 है, जहाँ पे इंडस्ट्री की प्राइस टू बुक वैल्यू 0.82 है। मींस प्राइस टू बुक वैल्यू में कॉम्पिटिटर से अगर हम देखेंगे इसके, तो तब जो है ये थोड़ा सा प्रीमियम में यहाँ पे ट्रेड करते हुए हमें देखने को मिल रहा है। पैग रेशियो जो है 1.48 नेगेटिव में है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3.15 टाइम्स का है। हाई जो इसने जो बनाया था 523 का बनाया था, लो 276 का बनाया है, और लो से भी रिकवर करके 349 के ऊपर ये जो है एग्जैक्ट अभी ट्रेड कर रहा है। ये बिल्कुल अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के पास में है, जो कि 332 रुपीज़ का है। अगर जो है इसका हम चार्ट अगर देखें, 10 साल का अगर हम चार्ट देखें, तो ये हमें 10 साल का चार्ट इस हिसाब से दिखने को मिल रहा है। ये जो है करीबन करीबन अपने जो है मार्च 2022 के आसपास के लेवल पे जो है ये हमें ट्रेड करते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पी अगर जो है इसका अगर 10 साल, 5 साल, 3 साल के हिसाब से देखें तो अपने मीडियन से काफ़ी ऊपर है। बट यहाँ पे जो है अगर मैं इसको प्राइस टू बुक रेशो के हिसाब से देखूँ, तो अगर आप देखेंगे 3 साल, 5 साल और 10 साल से अगर हम देखेंगे, तो मीडियन से ये हमें डाउन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसके बाद में जो है, अच्छा यहाँ पे जो है हमने दो चीज़ें देख ली। पीई रेशोज में अगर हम इसको compete करेंगे अपने कॉम्पिटिटर के साथ में देखेंगे, तो ये प्रीमियम में है खुद से ही। अगर इसका पीई रेशो लास्ट 3, 5, 10 ईयर का देखेंगे, तो ये मीडियन से ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन हम जो है प्राइस टू बुक वैल्यू से अगर हम इसको देखें, तो ये जो है अपनी मीडियन 3 साल, 5 साल और 10 साल के मीडियन से नीचे हमें यहाँ पे ट्रेड करने को देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि अब जो है अगर ये प्राइस टू बुक में जो है हमें सस्ता मिल रहा है, पी रेशो में तो हमें ये महंगा दिख रहा है, तो फिर हम क्यों जो है इस स्टॉक के बारे में डिस्कस करें। इसका रीज़न ये है कि क्योंकि इसका जो अभी जो प्राइस, इसका जो नेट प्रॉफिट जो है वो शार्पली जो है वो डिक्रीज हुआ है, जिसके हिसाब से हमारा पी रेशियो जो है वो बढ़ गया है। तो ये भी जो है हमेशा हमें ध्यान रखने की जरूरत है। प्रोस देखेंगे तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1.09 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू। कौन से इसमें कुछ दिखा नहीं रहा है। अगर हम इसका कंपैरिजन करें, तो इसमें जो है यहाँ पे जो है HNI ने जो है यहाँ पे हल्की सी पोजीशन 0.13 के हिसाब से जो है पोजीशन को हल्का सा रिड्यूस करा हुआ है। वहीं पर करंट मार्केट टू बुक वैल्यू जो है, अगर बुक वैल्यू के हिसाब से अगर हम इसकी वैल्यूएशन अगर देखें, तो 1.09 के आसपास में है, जो कि अपने बुक वैल्यू के काफ़ी पास में है। बट अगर मैं इसके कॉम्पिटिटर से अगर मैं कंपेयर करूँ, तो बेस्ट कोस्ट पेपर है, आंध्रा पेपर है, शेषाई पेपर है, पदमजी पेपर है, तो यहाँ पे जो है इन सबसे जो है ये किसी में कम किसी में ज़्यादा है। अगर मैं थोड़ा सा मैं बात करूँ, तो इसका जो है AB रियल एस्टेट 5 की बुक वैल्यू में ट्रेड कर रहा है, JK पेपर 1 में है, वेस्ट कोट जो है 0.92 है, शीशा पेपर 0.8 है, आंध्रा पेपर 0.7 है, और पदमजी 2.16 है, और TN न्यूज स्प्रिट जो है 0.51 के है। तो अगर मैं इसमें कंपैरिजन करूँ, तो लगभग लगभग जो अच्छे वैल्यूशन पे है, बिल्कुल अपने जो है बुक वैल्यू के पास में है। तो बहुत ज़्यादा जो है इसको ओवर वैल्यू हम यहाँ से नहीं कह सकते। सेल्स अगर हम देखेंगे, तो लास्ट 3 साल में इसने 19% के हिसाब से जो है सेल्स को ग्रोथ करा है, जो कि अपने जितने भी कॉम्पिटिटर हैं उसमें से सबसे बेस्ट इसने जो है वो ग्रोथ करा है। सबसे फैंटेस्टिक ग्रोथ जो है इसी स्टॉक की हुई है। वहीं पर ही अगर मैं इसको ROE से अगर कंपेयर करूं, तो इसका 19.73 है, जबकि इसके जितने भी जो कॉम्पिटिटर हैं उसमें हाईएस्ट ROE जो है वो वेस्ट कोस्ट पेपर का है, जो कि 23.39 है। उसके बाद में ये सेकंड लार्जेस्ट जो है ROE भी कैरी कर रहा है। पैग रेशियो जो है इसका नेगेटिव में दिखा रहा है 1.48। ठीक है, पी रेशियो इसका 16 है, ऑल टाइम हाई से 45% डाउन है। वो 1 साल का अगर रिटर्न अगर हम देखें, तो -26% का दे रहा है, मीन्स नेगेटिव में है। 3 महीने में भी -3% का है। क्वार्टरली प्रॉफिट और क्वार्टरली सेल जो है वो भी थोड़ी थोड़ी हमें यहाँ पे डिप होते हुए देखने को मिल रही है। अब जो है इसमें हम जो है क्वार्टरली रिपोर्ट में एक बार चल जाते हैं। क्वार्टरली रिपोर्ट में अगर हम देख लेते हैं, तो लास्ट जो है अगर मैं जून से अगर मैं कंपेयर करूं, जून 2024 में इसने जो है 1714 करोड़ का बिजनेस करा था। इस जून में जो है वो बिजनेस जो है वो थोड़ा सा कम 2.3% कम डाउन जो है वो बिजनेस हुआ है, जो कि 1674 करोड़ का जो है वो सेल करा है। ये जो सेल है, सेल भी कम हुई है। यहाँ पे जो उसका जो मार्जिन जो पहले जो 16% का जो था लास्ट क्वार्टर जून 2024 में, वो इस बार जो है वो घट के जो है 15% का मार्जिन हो चुका है, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट में भी जो है हमें काफ़ी डिप देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट जो है जो लास्ट जून 2024 में 141 करोड़ का देखने को मिल रहा था, इस बार जो है हमें वो 85 करोड़ रुपीस का देखने को मिल रहा है। तो नेट प्रॉफिट में भी जो है काफ़ी जो है शॉर्ट फॉल देखने को मिल रहा है। शायद यही कारण है कि ये जो है हमें 45% नियर बाय अपने ऑल टाइम हाई से डाउन भी हमें देखने को मिल रहा है। इस तरीके के स्टॉक में जहाँ पे हमें पता है कि आने वाले टाइम में जो है ये अच्छा कर सकता है, इन्होंने कुछ जो अभी एक्विजिशंस भी करी हैं, दे आर मोर फोकस्ड इनटू B2B क्लाइंट्स, जहाँ पे कि ये जितने भी ई-कॉमर्स हैं उनको पैकेजिंग सॉल्यूशंस वगैरह दे रहे हैं। तो ये जो है एक आने वाले टाइम में ट्रेंड सेक्टर है। जितने भी आजकल शॉपिंग जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं कहाँ पे, ऑनलाइन शॉपिंग में, तो वहाँ पे जो है इनको काफ़ी अच्छा जो है सपोर्ट मिल रहा है वहाँ से, क्योंकि ये पैकेजिंग सॉल्यूशंस वगैरह उनको प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, वहीं पर ही जो है अगर हम इसको ईयरली अगर हम डेटा से अगर कंपेयर करें, तो लास्ट 5 साल का अगर मैं डेटा देखूं, तो मार्च 2022 में जो है ये 3900 करोड़ का बिजनेस करते थे, और नेट प्रॉफिट जो है ये 544 का उन्होंने पोस्ट करा था। मार्च 2023 में 6400 करोड़ के
रेवेन्यू में 1200 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट पोस्ट करा है। फिर मार्च 2024 में 6600 करोड़ के प्रॉफिट में 1133 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा है। मार्च 2025 में 6700 करोड़ के बिजनेस में जो है 412 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा है। और लास्ट 12 ट्रेलिंग मंथ में जो है 6669 उनासी करोड़ का जो है इन्होंने बिजनेस करा है, जिसमें कि अभी जो है 357 करोड़ का उन्होंने नेट प्रॉफिट पोस्ट करा हुआ है। इसका रीजन जैसे मैंने आपको बताया कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो है इनका हिट आया हुआ है। अभी जो है 12 ट्रेलिंग मंथ में ये 13% का दिखा रहे हैं, उससे पहले इन्होंने 14% का दिखाया था लास्ट ईयर में। लेकिन अगर आप इसकी लॉन्ग जर्नी देखोगे तो 24, 31, 25, 20, 28 इस तरीके से जो है इसका रेवेन्यू रहता है, इसका जो है ऑपरेटिंग मार्जिन रहता है। और वहीं पर ही अगर 10 साल पहले अगर हम देख लें 2014-15 में, तो 8% और 12% भी जो है इसका ऑपरेटिंग मार्जिन स्लिप हुआ है। ये सारी जो है ये डिपेंड करता है कि इसका जो है कॉस्ट जो है ये किस तरीके से जो है इनको मिल रहा है इसका। ठीक है, अब जो है एक बार जो है इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ को देख लेते हैं। अगर हम लास्ट 10 साल का देखें तो 12% जो है CAGR से ग्रोथ करा है, वहीं पर प्राइस जो है 25% CAGR से ग्रोथ करा था। 5 साल में जो सेल्स जो है वो 17% से ग्रोथ करा है, वहीं पर ही 5 साल में प्राइस जो है वो 29% से ग्रो करा था। 3 साल में जो है वो 19% से सेल्स ग्रोथ करा हुआ, लेकिन यहाँ पे स्टॉक प्राइस जो है वो -7% जो है वो 3 साल में -7% का जो है रिटर्न दे रहा है, मतलब नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। और 1 साल में अगर देखा जाए तो जहाँ पे सेल्स ग्रोथ जो डिप हुई है -2% से, वहीं पर ही जो प्राइस जो है वो -27% ऑलरेडी टूट चुका है। तो ये जो है एक अच्छा गैप हमें देखने को मिल रहा है 3 साल में और 12 ट्रेलिंग मंथ में, जो कि आने वाले टाइम में डेफिनेटली फील हो सकती है। सेम जो है एक यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि रिटर्न ऑन इक्विटी जो है, जो कि 10 साल 5 साल में 18% का रहता था, लास्ट 3 साल में वो बढ़ के 20% हो गया था। लेकिन लास्ट ईयर में क्योंकि रॉ मटेरियल की कॉस्ट इसके काफ़ी बढ़ गए हैं, तो ये जो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है वो घट के 7% में आ गया। तो ये जो है ऑलरेडी जो है वर्स्ट हो चुका है। आने वाले टाइम में जो है अगर जैसे ही यहाँ पे जो है कुछ इंक्रीमेंटल चेंजेस आते हैं, कुछ इसमें पॉजिटिव होता है, तो डेफिनेटली जो है इसका जो है हमें देखने को इसके प्राइस में मूवमेंट देखने को डेफिनेटली इसमें मिलेगा। वहीं पर बैलेंस शीट अगर हम देखें तो इक्विटी कैपिटल जो है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे जो है वो बीच में बढ़ रहा है, बीच में कम है, लेकिन रिजर्व जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। अगर मैं लास्ट 3 साल की बात करूँ तो 3865 से बढ़ के 4900 करोड़ हुआ है, अब बढ़ के जो है 5238 करोड़ के आसपास में है। वहीं पर ही बोरोइंग जो है वो 2803 करोड़ का जो था वो 2023 में था, वो घट के 2204 करोड़ हुआ है मार्च 2024 में। और मार्च 2025 में ये घट के जो है 1885 करोड़ हुआ है। तो अपने बोरोइंग्स को जो है ये कंटिन्यूसली लास्ट 4 ईयर से जो है वो उसको डिक्रीज कर रहे हैं। और इन्होंने इसके साथ साथ में जो है न्यू एक्विजिशंस वगैरह भी करे हुई हैं। CWIP में जो है इनका बहुत ज़्यादा पैसा देखने को नहीं मिल रहा है, 124 करोड़ 2023 में, 2024 में 66 करोड़ और 2025 में अभी 99 करोड़ जो है इनके CWIP में। ठीक है, इसके बाद में कैश फ्लो जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है कि कैश फ्लो ये अच्छा कर रहे हैं। डेटर डेज जो है इनके 20 डेज से बढ़ के 23 हुए हैं। इन्वेंट्री जो है इनके पास में 100 से 112 दिन की जो है अभी रख रहे हैं, तो ये भी इंक्रीज हुआ है। डेज पेबल जो 72 डेज का होता था वो घट के 67 डेज हो गए हैं। कैश कन्वर्सेशन साइकिल जो है वो 48 डेज का जो है वो बढ़ के जो है 68 डेज हो चुका है। ROCE जो है अभी 9% का कर रहे हैं, जो कि काफ़ी कम है। अगर आप प्रीवियस से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है एक अच्छा जो है आगे आने वाले टाइम में ROCE इंक्रीज होएगा, तो डेफिनेटली जो है प्राइस में ये मूवमेंट हमें देखने को डेफिनेटली मिलेगी। शेयर पैटर्न जो है अगर आप देखेंगे तो 2022 से लेकर 2025 का अगर आप डेटा देखेंगे तो प्रमोटर की जो है वो काफ़ी कांस्टेंट रही है। 49.64 की जो होल्डिंग रहती थी वो लगभग 49.63 मींस ऑलमोस्ट सेम है वहीं पर ही। लेकिन अगर आप FII की देखेंगे तो जो 6% की जो होल्डिंग 2022 में होती थी वो बढ़ के अभी जो है 11.76% की होल्डिंग जो है हो चुकी है। वहीं पर ही जो है DII की जो होल्डिंग 4.46 की होती थी वो बढ़ के जो है 5.47% की हो चुकी है। तो ये दोनों जो है यहाँ पे पॉजिटिव दिखा रहे हैं। वहीं पर ही जो पब्लिक 39% की जो होल्डिंग करता था आज वो घट के जो है वो 33% की मात्र होल्डिंग रह गई है। लाइक वाइज नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो है वो 1,12,000 की जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर होते थे वो आज घट के जो है 1,51,000, सॉरी, इसमें जो है नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो है ये हमें जो है वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं 1,51,689 करोड़ के। ठीक है, वहीं पर ही पब्लिक को थोड़ा सा और अगर हम डिवाइड करें तो इसमें भी जो है कुछ HNI यहाँ पे जो है, जो कि प्रदीप कुमार खेतान जो है वो 4.97 की होल्डिंग जो है वो कंटिन्यूसली रख रहे हैं। सचिन बंसल की जी की होल्डिंग जो है वो 1.62 की लास्ट थी, जो कि वो अभी रिड्यूस होकर जो अभी यहाँ पे नहीं दिखा रहा, हो सकता है 1% से कम होगा तो यहाँ पे विजिबल नहीं होएगा। लाइक वाइज जो है आप डॉक्यूमेंट में जो है इनकी एनुअल रिपोर्ट, क्रेडिट रेटिंग एंड कॉन कॉल डेफिनेटली आप इसमें गो थ्रू करिएगा। इससे जो है आपका कन्विक्शन बिल्डअप करने में जो है ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड द टेक्निकल एनालिसिस। एनालिसिस में जो है जेके पेपर का ये मैंने वीकली चार्ट खोल रखा है। वीकली चार्ट के हिसाब से अगर मैं आपको देखूं तो ये जो है लास्ट टाइम जो है यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था अगस्त 2021 में, यहाँ पे टॉप बनाया था, सॉरी, इसने ब्रेकअप दिया था 14 मार्च 2022 को। यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद में यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद में फिर ये ऊपर की मूवमेंट हुई थी।
फिर ये नीचे आया था और अब जो है फिर से यहाँ पे इसी लेवल पे ये जो है सपोर्ट लेने के बाद में जो है इसने मूवमेंट चालू करी हुई है। जो इसका जो डाउनवर्ड चैनल जो ये बना बना रहा था जुलाई 2024 से लगातार जो डाउनवर्ड चैनल जो बना रहा था, इस डाउनवर्ड चैनल को इसने ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद में इसी लाइन पे जो है एक छोटा सा सपोर्ट लिया। अब चांसेस हैं कि यहाँ से जो है एक मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। दूसरा ये भी हो सकता है कि ये यहाँ पे अभी आया है तो हो सकता है यहाँ से ये वापस जाए, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाए और डब्ल्यू पैटर्न बना के यहाँ से फिर जो है ये अपनी मूवमेंट चालू करे। लेकिन ये जो है टेक्निकली और फंडामेंटली जो है कंपनी काफ़ी साउंड लग रही है। आने वाले टाइम में जिस बिजनेस में है ये पैकेजिंग के बिजनेस में, ये जो है डेफिनेटली जो है ये ग्रो ही करेगा। जितने भी जो ऑनलाइन प्लेयर जो हैं उसके साथ में जो है इनका की बिजनेस है। आने वाले टाइम में इन्होंने जो है ये भी गाइडेंस दी हुई है कि 2000 करोड़ के आसपास का बिजनेस जो है ये जो है इस पैकेजिंग इंडस्ट्री से जो है ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में जो है एक अच्छा बिजनेस जो है ये यहाँ से भी जो है ये जनरेट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस बार जो है हमने कंपनी की जो है पूरी डीप एनालिसिस करी है। आप ये बिल्कुल नोट डाउन करके चलिए कि मेरी कोई भी इसमें बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। ये जो हम जो वीडियो बनाते हैं ये हम इस पर्पज़ से बनाते हैं कि आप और हम जो है दोनों जो है एक लॉन्ग टर्म की वेल्थ क्रिएट जो है वो हम कर सकें, और जो है हम आपके साथ में जो है ये जर्नी जो है हम चालू कर सकें। एक कन्विक्शन आपका बिल्डअप हो, किस तरीके से कंपनी की स्टडी करनी है, किस तरीके से कंपनी की को जो है वैल्यू करना है, ये सारी चीज़ें जो है हम एनालाइज करें। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीक जो है नए वीडियोस के साथ में जो है मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑफ माय चैनल। इफ यू हैव एनी क्वेरीज एंड क्वेश्चंस प्लीज comments on the comment box. I will reply and try to resolve your issues. Thank you very much. Have a nice day. See you in the next video next week. Take care. Bye bye. I'm signing off. This side Manthapa.